وہ دنیا میں بھی لوگوں کا وفادار ہو جائے. آمین. ضروری ہے کہ آپ لوگ اس سے پہلے کہ دنیا کے وفادار ہوں، آپ کو پہلے خدا کے وفادار ہو جائیں. جب آپ خدا کے وفادار ہو جائیں گے، آپ اس کی وفاداری میں ریگولر دعا کیا کریں گے. جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے تو آپ کا پہلے نمبر پر دل یہ کرے گا کہ سارے کاموں سے پہلے ہم خدا کا کلام پہلے پڑھیں. ہم چرچ جائیں، خدا کے حضور میں جائیں، خدا کے قدموں میں جائیں. اس لیے زندگی کی کتاب کے اندر زندگی گزارنے کے مینرز پائے جاتے ہیں. آج بہت سارے لوگ بائبل کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے زندگی کے اندر ڈسپلن نظر نہیں آتا، اسی لیے زندگی کے اندر مینرز نظر نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ آپ کلام کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. اور جو زندگی کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے، یاد رکھیے اس کی زندگی میں مینرز بھی آ جاتے ہیں، برکتیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس کی زندگی کے اندر دنیا کی وہ چیزیں جو اس کو حاصل نہیں ہوئی وہ بھی مل جاتی ہیں. اس لیے کہ زندگی کی کتاب کے اندر ساری چیزیں ہیں. اگر میں شفا کی بات کروں تو شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اچھی بولنا ہے. کہاں سے ملتی ہے؟ اور اچھی. شفا کہاں سے ملتی ہے؟ برکت کہاں سے ملتی ہے؟ معجزہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی ساری چیزیں تو اس کلام کے اندر ہیں. لیکن آج بہت ساری زندگیاں خدا کے کلام سے دور ہیں. آج بہت سارے لوگ خدا کے حضوری سے دور بیٹھے ہیں. اس لیے آج قسط نمبر 3 ہے جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. کتنی قسطیں ہم سیکھ چکے ہیں؟ 2 قسطیں ہم سیکھ چکے ہیں، اور آج قسط نمبر 3 ہے. مضمون کیا ہمارا؟ اپنی زندگی کا شاباش. یہ مضمون چل رہا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ اس کا ٹائٹل بھی ہے، نام بھی ہے، مضمون بھی ہے، اور پیٹرن بھی جو دیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے ہمارے لیے جو ضروری ہے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی گزارتے ہم نے اپنی زندگی کے امتحان کو کیا کرنا ہے؟ پاس کرنا ہے. پاس کرنا. آج بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ زندگی کے امتحان میں فیل کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس زندگی کی باتیں نہیں ہیں. ہمیں اگر آپ زندگی کے امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو جس میں سے زندگی نکلتی ہے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینی پڑے. اور زندگی خدا کے کلام میں سے نکلتی ہے، معجزات خدا کے کلام میں سے نکلتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے امتحان کو کیا کریں؟ پاس کریں. اور یہاں پر پہلا حوالہ نکالیے گا، مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4واں باب ہے، 24واں باب 37 میں، اور اس کے بعد پیدائش کی کتاب 7واں باب 16 میں، 4واں باب 21 میں، اور یسایا 53 باب 30 میں. یہ حوالہ جات میچ کرتے ہیں، ایک ہی حوالہ ہے. اس لیے جلدی سے بغیر وقت گزار کیے پڑھیے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی کیا ہوگا؟ اونچی بولنا. ویسا ہی کیا ہوگا؟ ابن آدم کے آنے کے وقت میں ہوگا. سیم سچویشن بتائی گئی، سیم حالات بتائے گئے، سیم کنڈیشن بتائی گئی. اور کنڈیشن کیا ہے، سچویشن کیا ہے کہ جیسا مقدس نوح کے دور میں تھا، اور مقدس نوح کے دور میں موسیقی عروج پر تھی، وہ موسیقی جو خدا کو پسند نہیں تھی، وہ موسیقی جس سے خدا خوش نہیں تھا. آج بھی بہت سارے لوگ اس موسیقی کو سننا پسند کرتے ہیں جس میں خدا کی حضوری نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ اس موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس موسیقی میں ذرا خدا کی برکت نہیں پائی جاتی. اس کا مطلب آج بھی دنیا کے اندر بڑے لوگ جو ہیں وہ موسیقی تو سنتے ہیں، پر اس موسیقی کو سنتے ہیں جس میں خدا نہیں ہے، جس میں خدا کی حضوری نہیں ہے. اور نوح کے وقت میں سچویشن یہ تھی، حالات بڑے خراب تھے، اور پورے کا پورا معاشرہ خراب تھا، پوری دنیا خرابی کی حالت میں. اور اس وقت یہ لکھا ہوا ہے لوگ
वक्त की कंडीशन सिचुएशन ये थी कि लोग जो थे वो ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे जो अपनी जिस्मानी जिंदगी के अंदर है, यानी नाच रंग भी है, ऐशोशरत भी है, ड्रिंक भी है, सारे हालात मिलजुल कर खराब हुए नजर आते हैं, लेकिन ओनली 1% जो है वो राह नजात है। और मसीह ने ये लफ्ज पुराने आदनामा से बताया गया, पुराने आदनामा की कंडीशन को रखा गया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वक्त में हुआ था, वैसा ही इब्ने आदम के आने को, इब्ने आने पर इब्ने आदम खुदा का बेटा यीशु नासरी है। और कहा गया है कि वैसी सिचुएशन होगी कि वो लोग जो जिस्मानी हैं वो दुनिया की नकलों के अंदर, वो दुनिया की एसोसिएट के अंदर, शायद जो लोग म्यूजिक पसंद करते हैं वो म्यूजिक की तरफ, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी सिचुएशन या हालत कैसी है, तो याद रखिए आपका खुदा भी आपके बारे में जानता है। अगर आप लोगों के बारे में जानते हैं तो आपका खुदा भी हमारे बारे में जानता है। इसलिए सिचुएशन ये थी कि लोग दुनिया के कामों में, दुनिया की चीज़ों में बिजी थे। और दुनिया की चीज़ों में उस वक्त कौन कौन सी थी? वो सारे काम जो खुदा को पसंद नहीं थे। इसका मतलब गलत म्यूज़िक ये खुदा को पसंद नहीं। वो इस तरह से इसकी हमें मिसाल ये मिलती है कि उस वक्त म्यूज़िक में जब हिस्ट्री में देख रहा था कि नया नया आज़ाद हुआ था, चंद साल हुए थे अभी, और नया नया था। और सबसे पहला म्यूज़िक जो बनाने वाला है वो यूबल हमें नज़र आता है। ज़रा पैदाइश की किताब 4 बाब 21 में आपको ज़रा पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। इसकी पहली बात यह है, नूह इम्तिहान में पास होकर उस वक्त के लोगों के लिए राह नजात बन गया। अगर वो इम्तिहान में कामयाब ना होता, अगर वो इम्तिहान में पास ना होता, तो अपने उस वक्त के लोगों में कभी भी वो कामयाब ना होता, कभी भी वो राह नजात दहिंदा ना बनता। पढ़िएगा। और उसके भाई का नाम योबिल था, वो पीक और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। उसके भाई का नाम क्या था? योबल। और योबल क्या था? बीन और बांसुरी। बीन और आगे बढ़ के बाद बीन और बांसुरी बजाने वालों का क्या था? बाप था। इसका मतलब ये है कि वो जिसने पहली दफा म्यूजिक आजाद किया, जमीन पर उसको कोई म्यूजिक नहीं था, जमीन पर कोई साज नहीं था। इसका मतलब ये है कि यूबल ने साज आजाद किया, और साज बनाने वालों में से जो बानी है, जो बानी उसको कहते हैं जो चीज को बनाने वाला हो। इसका मतलब साज का बानी कौन था? यूबल। और बनाने वाला कौन था? वही जो बानी, यूबल। वही जो बानी था जिसने उसको बनाया, जिसने उसको वहां पर कायम किया। अब सिचुएशन ये थी कि म्यूजिक को आजाद कर दिया गया, साज को आजाद कर दिए गए, सारी चीजों को बनाया गया। अब उसके साज आजाद करने का पर्पस ये नहीं था कि लोग गुमराही के अंदर आए, पर्पस ये नहीं था कि लोग जो है वो इस बर्बादी के अंदर आए। पर्पस ये था कि वो साथ किसके लिए हो? किसके लिए हो? खुदा के लिए हो। और जो चीज खुदा के लिए हो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए जरूरी है बात है क्या? हमारे लिए जो खूबसूरत बात यह है कि आप और मैं जब म्यूजिक की बात करते हैं तो म्यूजिक के बारे में कलाम ने बड़ा अच्छा फैसला किया। कलाम म्यूजिक को प्रमोट करता है। और मुकद्दस दाऊद जो है उसने कितने साज तैयार किए थे? 4000 साज। उसने 4000 साज इसलिए तैयार नहीं किए थे कि उन साजों का गलत इस्तेमाल किया जाए।
उसने 4000 साज खुदा की प्रस्तुत के लिए तैयार किए थे। आमीन। और कवायद लीडर था, 4000 साजों को तैयार किया गया। इट्स मीन 4000 लोग साजों को बजाने वाले तैयार किए गए। आमीन। इतनी बड़ी कवायद तैयार की गई, इतनी बड़ा सेटअप तैयार किया गया। वो किस लिए? ताकि इन साजों के साथ खुदा की क्या हो सके, उसकी मोहब्बत खुदा के लिए देखें, तो उसका प्यार खुदा के लिए देखें कि 4000 साज उसने किसके लिए तैयार किए। बताऊंगा ये कि सेम पिछाएंगे कि उस वक्त जो है लोग गलत कामों में, नाच रंग में, दुनिया की महफिलों में, दुनिया की चीजों में बिजी थे। लेकिन याद रखिए खुदा दुनिया की चीजों को देने तो वाला है, लेकिन दुनिया की चीजों का गलत इस्तेमाल करने वालों को पसंद नहीं करता। आज भी बड़े लोग जिनको अच्छा गला दिया, अच्छी आवाज दी, अगर उनको टिकटॉक पर देखें तो उनकी आवाजें कैसी हैं? वो आवाजें जो खुदा ने प्रस्तुत के लिए दी हैं, आज वो आवाजें इब्लिस के हथियारों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वो आवाजें, वो गले, वो होंठ जो खुदा ने प्रस्तुत के लिए दिए हैं, आपको टिकटॉक पर नजर आएंगे, आपको शायद दूसरी चीजों में नजर आएंगे। याद रखिए जो आवाजें खुदा ने दी हैं, वो आवाजें सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जो गले खुदा ने दिए हैं, वो गले सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूं, आप साबित क्या करवाना चाहते हैं? आप क्या साबित करवाएंगे अगर आप गाने लगाकर टिकटॉक पर आते हैं? अगर आप ये चीजें लगाकर अपना स्टेटस शो करवाते हैं? भाई स्टेटस का मतलब क्या होता है? अपना म्यार बताना। इधर क्या मतलब है स्टेटस? अपना म्यार बताना। अपना म्यार बताना। सुने, जो शख्स स्टेटस का रॉन्ग इस्तेमाल करता है वो अपना म्यार बताता है, आई एम नॉट गुड पर्सन, है ना? क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस बताएगा उसकी सोच कैसी है, आपका स्टेटस बताएगा आपके ख्याल कैसे हैं, आपका स्टेटस बताएगा आपकी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, आपका स्टेटस बताएगा आपकी मोहब्बत खुदा के साथ है या दुनिया के साथ है। क्या आपका स्टेटस ये कम है कि आप शाही काहिनों का फिरका है? हालेलुया। क्या आपका स्टेटस ये कम है आप चुने हुए और मुकद्दस लोग हैं? क्या आपका स्टेटस कम है आप मसीही पूरी दुनिया के लिए निजात का पैगाम लेकर आए हैं? अभी आपका स्टेटस दुनिया में डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने स्टेटस का रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने स्टेटस को नहीं बल्कि अपने मसीह का मुराद डाउन करते हैं। अगर आप अपने स्टेटस को मसीह में लगाते हैं, इसका मतलब आप मसीहियत को अपलिफ्ट करते हैं, आप मसीहियत के लिए एक अच्छे स्टेटस का बनकर बयान कर रहे हैं कि आई एम क्रिश्चियन, मेरा स्टेटस जो है मैं जो हूँ वो आई एम रिच पर्सन। आप गरीब नहीं है, आप शाही कहनों का फिरका है। यू आर नॉट पुअर पीपल। लेकिन हम कहते हैं हम क्या हैं? गरीब हैं। पैसा ना होना गरीबी नहीं है ना? लेकिन हम कहते हैं पैसा ना होना तो हम क्या हैं? गरीब हैं। आप गरीब नहीं हैं। पैसे को पास रख कर उसको खुदा के लिए ना देना ये गरीबी है। पैसा पास रखकर उसको खुदा के लिए इस्तेमाल ना करना ये गरीबी है। पैसा अगर पास है आप लोगों की भलाई नहीं करते, भलाई के काम नहीं करते तो ये गरीबी है। आपका स्टेटस बड़ा ऊंचा है, लेकिन आज के मसीह ने टिकटॉक पर दुनिया पर अपने आप को नुकसान दिया है, इसलिए कि आप चर्चेस के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए कि लोगों के खिलाफ बोलते हैं। आपका मसीह लोगों के खिलाफ बोलने का दर्श नहीं देता। आपका मेरा मसीह लोगों के बारे में अच्छाई की बातें बयान करने के बारे में बताता है। आपका मेरा मसीह लोगों के ऐब छुपाने के बारे में बताता है। इसलिए अपने स्टेटस को देखें कि मेरा स्टेटस क्या है। अगर आप अपने, मैं कभी कभी देखता हूँ
पादरी ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पता ना लग जाए हमारा स्टेटस क्या है बट पादरी को पता होता है किसने हाइड किया है किसने प्राइवेसी लगाई है आप अपने बाप से कभी चीजें छुपा नहीं सकते और आप में से मैं नाम भी बता सकता हूँ पर्सनल है ना किसने हाइड किया है ये आपका स्टेटस नहीं है आप मुझसे तो छुपा लेंगे पर अपने खुदा से कभी नहीं छुपा सकते मुझे बताया चर्च जाने वाले लोग हैं अगर आप अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वजह से आपके लोगों पर क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तेदारों पर क्या असर पड़ेगा कि ये चर्च जाने वाले लोग इनका स्टेटस कैसा है ना आप क्या बताएंगे कि हम चर्च जाने वाले लोग सपों में बैठने वाले लोग चर्च में कलाम सुनने वाले लोग आगे बैठने वाले पीछे बैठने वाले दरमियान में बैठने वाले कोई पीछे ना रह जाए है ना सब इक्वल अगर हम सब इक्वल हैं तो हमारा स्टेटस क्या है खुदा की नजर में हम क्यों अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल करते हैं आप ऐसा स्टेटस लगाएं जिससे दूसरों को बरकत मिले है ना ऐसा स्टेटस लगाएं आपको अपनी चीजें छुपाने के लिए हाइड ना करना है ना सारी अच्छी कि आपके पता चले आप ये सोचे कि आपका मसीह है जो आप पर नजर किए हुए है ना मैं ये कहता हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं मैं आपकी खुशगवार जिंदगी गुजारने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपकी जिंदगी कलाम से ज्यादा खुशगवार नहीं हो सकती दुनिया की कोई ताकत आपको खुशगवार नहीं कर सकती दुनिया की चीजें महज आर्जी आपको खुशी दे सकती हैं पर खुदा का कलाम गीतों की रागनी गीतों की आवाजें आपको हमेशा इत्मीनान से भरता है हालेलुया हो सकता है कोई पर्सन परेशानी के अंदर हो सकता है कोई पर्सन दुख के अंदर हो लेकिन हो सकता है वो दुख में आपके लगाए गए स्टेटस को देखकर उसका दुख हल्का हो जाए आमीन ऐसा स्टेटस लगाएं जो दूसरों की जिंदगी के स्टेटस को भी बदल दे हालेलुया ऐसा स्टेटस ना लगाएं कि ਤੁਹਾਡਾ स्टेटस देख के दूसरे दे भी दिले डुबी गए ऐसा क्या कह रहे भाई हाँ कई दफा शरीका भी आग्रह वाला स्टेटस है ना ऐसे स्टेटस जो आप दूसरों की बेइज्जती करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे स्टेटस ना लगाएं जिससे लोगों को तकलीफ हो ऐसे स्टेटस लगाएं जिससे लोगों को खुशी फील हो वो लोग बरकत पाए इसलिए क्योंकि आपके मसीह ने आपका स्टेटस इतना बुलंद किया है कि कौम में आज आपको सलूट करती है अगर दुनिया का सबसे अमीर शख्स देखा जाए तो वो मसीही है आमीन अगर दुनिया की सारी चीजें जिसने आजाद की हैं वो मसीही है आप खुश नसीब है क्योंकि जिसने बल्ब आजाद किया थॉमस एडिसन था जो क्रिश्चियन था और क्रिश्चियन होने के नाते पूरी दुनिया में न सिर्फ कलाम की रोशनी बल्कि दुनिया की रोशनी दिखाकर साबित कर दिया हम रोशनी फैलाने वाले हालेलुया आपका स्टेटस दुनिया में बुलंद है ऐसा स्टेटस लगाए आप दूसरों के लिए राह नजात बन जाए यानी नूह ने जो इम्तिहान में पास होकर उस वक्त के लोगों के लिए वो क्या बन गया राहे निजात क्या बन गया राहे निजात तो लोगों ने क्या उसकी बात को कबूल किया नहीं जरा ये शायर की किताब 53 बात पढ़े तीसरी जल्दी से वो आदमियों में हकीरो वो मर्दूद आदमियों में हकीरो मर्दूद जी मर्दे गमनाक और मर्दे रंज का आशना गमनाक था और रंज का आशना था और रंज का सेम सिचुएशन जो है मुकद्दस नूह की थी लोगों को कहता रहा कश्ती आप लोगों के लिए है
ये कश्ती निजात का दरवाजा है, ये कश्ती हमारे लिए है। आप तौबा कर लें, आप इकरार कर लें, आप खुदा के पास आ जाएं। लेकिन उस वक्त के लोगों ने नूह की बात को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आज भी बड़े लोग जो है वो मसीह की बात को क्या करते हैं? रद्द कर देते। मसीह ने कहा बिना नागा दुआ किया कर। आज कितने बिना नागा दुआ करते हैं? सारे हाथ देखो चुके सारे। एक जगह मैं गया, कलाम सुना रहा तो मैंने कहा जिसने तौबा करनी है तो वो अपना हाथ खड़ा करे, कुछ नहीं यहाँ तक किया। तो फिर मैंने कहा कि खड़े हो जाए, कुछ नालियाँ निकाल ले। जब खड़े होने की बारी है, जब खड़े होंगे तो सबको पता लगेगा। हम चाहते नहीं कि लोग हमें पता देखें कि हमने तौबा कर लिया। क्यों? क्योंकि लगता है कि लोग बातें करेंगे कि हाल उन्होंने भी तौबा कर ली। इसलिए सेम हालत ये जो बिलाना का दुआ करते हैं यहाँ तक, जो बिलाना का दुआ करते उनके अंदर दलेरी होती है, वो डरते नहीं, वो खुदा के अंदर दलेर होते हैं। इसलिए मसीह का हुक्म यह है कि बिलाना का क्या करो? दुआ करो। हमने बिलाना का दुआ करनी है, वो बिलाना का बरकतों को जारी करेगा। आमीन। अगर आपकी दुआ बिला नागा हो जाएगी, उसकी बरकतें बिला नागा हो जाएंगी। शायद वो बरकतें जो रुकी हुई हैं आपकी बिला नागा दुआ से, आसमान से बरकतें जो हैं वो जारी होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप अपने लोगों के लिए राह नजात का काम करें। जैसे नूह उस वक्त ये राह नजात जिंदा बना, राह नजात बना जब उसने जिंदगी के इम्तिहान को क्या कर लिया? पास कर लिया। और आज बड़े लोग जो है वो अपनी जिंदगी के इम्तिहान को पास नहीं करते। दूसरी बात, नूह इम्तिहान पास करने के बाद दरवाजा किसने बंद किया? खुदा ने। खुदा ने। जरा पढ़िएगा 16। और जो अंदर आए जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर मादा थे, तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा किसने बंद किया? खुदा ने। मुझे बोलो, दरवाजा किसने बंद किया? खुदा ने। याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है दरवाजा बंद खुदा ने किया। और मैं ये कहता हूँ खुदा के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और खुदा के खोले हुए को कोई जादूगर भी बंद नहीं कर सकता। आज दुनिया में एक लफ्ज बड़ा फेमस है, वो ये लफ्ज है कि जादू बरहक है ना? कौन कौन ये कहता है जादू बरहक है? इसराइल पर अफसून नहीं चलेगा, ये तूने कहा। कोई आज बहुत सारे मसीह ये कहते हैं कि जादू क्या है? आप पूरी बाइबल के अंदर मुझे साबित करवा दे। ना आज कहेंगे देखो जी तो नबी आते भी चल गया है तो मुंह जरा बना लेते हैं, तरस दिया है ना, मुंह कसाए से बेचैनी। पर मुझे पूरी बाइबल में साबित करवा दे कि नबी के ऊपर जादू चला है। मैं ये कहता हूँ ये जादू को खत्म करने वाली किताब है। इसके सामने कोई नहीं चल सकता। ये इल्मों को खत्म करने वाली किताब है, और इस इल्म के सामने दुनिया का इल्म फेल है। क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुत सारे जादूगरों ने अपनी किताबें क्या कर दी? जला दी। क्यों? क्योंकि बाइबल के सामने कोई जादूगर ठहर नहीं सकता। ऐसे ही अपने दिमाग को खराब कर लिया है। जब आप कहते हैं तो इसका मतलब आप फेल हो जाते हैं। इसलिए मसीही इस बात को सुन ले, कोई आप पर जादू करे भी अगर आपका ईमान मजबूत है वो चल नहीं सकता। कोई इल्म आपके ऊपर नहीं चल सकता। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दरवाजा किसने बंद किया है? खुदा ने। खुदा ने। मैं सोच रहा था कि क्यों खुदा ने दरवाजा खुद बंद कर दिया। कश्ती बनाने वाला नूह, कश्ती में जाने वाला नूह, फैमिली उसके साथ, जानवर उसके साथ, दरवाजे का बंद करने का इख्तियार नूह को नहीं दिया गया। वाई? क्यों? सोचे जरा, ये क्यों ऐसा हो? क्योंकि अगर नूह करता तो
क्या पता वो दोबारा से खोल देगा लोगों को। हाँ, एक पॉइंट ये है कि अगर मुंह दरवाजा बंद करता तो शायद लोग आकर, जब तूफान बरपा होता, पानी आता, शायद लोग आकर जोर जोर के चीख चीख कर कश्ती को वो हर तरह से इस तरह से जरूरत देते होंगे कि हमारे लिए दरवाजा खोल दे। शायद खुदा ने सोचा होगा कि अगर ये बंद नहीं करेगा, हो सकता इंसान है तरस खाकर दरवाजा खोल दे। एक बात तो ये, लेकिन दूसरी बात जो इससे भी बढ़कर है वो ये है, खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा के बंद खुदा के बंद किए को जिस कदर तूफान था, है ना, जिस कदर खतरा था। मैं एक आज हिस्ट्री में जब देखते देखते मुझे एक वो याद बात है, पीछे चंद महीने साल पहले एक पानी के अंदर चीज गई थी, है ना, नहीं वो उन्होंने अमीर शख्स था, चार लोग थे, देखने गए है ना, थे, वो अमीर शख्स था, उसका बेटा भी साथ है, बेटा और बाप दोनों थे। बेटा और बाप दोनों थे, और कुछ लोग उसमें थे, और वो आज की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की गई थी, है ना। इतनी कॉस्ट उसके ऊपर आई, इतना पैसा छोटी सी चीज पर आया। वो नीचे गए, लेकिन वो क्या हो गई थी, ब्लास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो खुदा की कुदरत को जानने की कोशिश कर रहे थे, गहराई को ढूंढने गए थे, हाँ, ये भी ठीक है, और वो अपनी ताकत पर भरोसा करके गए थे कि जो हमने तैयार ये भी ठीक है, और कहीं क्योंकि उनके साथ खुदा है। खुदा के प्यार करनी चाहिए। और दिमाग बात मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ, वो ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त आपने फरमाया, लेकिन पानी इस कदर प्रेशर में था कि वो बर्दाश्त। तो आप जरा इस कश्ती की सिचुएशन देखें, ये उससे भी ज्यादा प्रेशर था। वजह भाई, पूरी दुनिया में जो तूफान भी और पहाड़ भी छुप गए, और नीचे से प्रेशर पानी का, ऊपर से बारिश का प्रेशर, और कितनी पत्थर आकर कश्ती के साथ लगते होंगे, कितने टूटे हुए बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो कश्ती के साथ लगते होंगे, है ना। उस वक्त के पत्थरों ने कश्ती को नुकसान दिया, लेकिन तोड़ न सके, है ना। उस वक्त के लकड़ियाँ दरख्त उसके साथ लगे, लेकिन वो कश्ती को हिला न सके। क्यों? क्योंकि खुदा उस कश्ती में मौजूद था, और खुदा ने उस दरवाजे को बंद किया हुआ था। और जब खुदा दरवाजा बंद कर दे, दुनिया का कोई तूफान उसे खोल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। आपके लिए, मेरे लिए जरूरी है कि दुनिया में आज भी तूफान आ रहे हैं, बड़े तूफान है। शायद ये बीमारी का तूफान हो सकता है, गुर्बत का तूफान हो सकता है, परेशानियों का तूफान हो सकता है, मुश्किलात का तूफान हो सकता है, लेकिन जब आपके लिए आप उन दरवाजों को खुदा बंद कर देगा, दुनिया का कोई तूफान आपकी जिंदगी को नुकसान नहीं दे सकता। आमीन। दुनिया का कोई तूफान आपके रुपये पैसे को नुकसान नहीं दे सकता। जरूरी है अपने लिए ये दुआ करें कि खुदावन मेरी जिंदगी के खिलाफ जितने तूफान है इनको तू बंद कर दे। जब तू बंद करेगा तो ये कभी नहीं खुलेंगे। इसलिए नूह के लिए जो दरवाजा खुदा ने बंद किया, उसका पर्पस ये था कि ये तूफान इस दरवाजे को खोल ना पाए, ये तूफान इस दरवाजे को तोड़ ना पाए। आपके लिए, मेरे लिए आज जो बात बड़ी खास और अहम है, आज हमारे लिए अगर हम जिंदगी के इम्तिहान में पास हो जाएंगे तो फैमिलीज को चाहिए अपने घरानों के अंदर ये दुआ करें कि खुदावंद हमारी जिंदगी के खिलाफ जितने इब्लीस के मंसूबे हैं उन सब मंसूबों को तू बंद कर दे। हमें दुआ करना नहीं आती। मैंने पहले भी एक दफा बताया कि बहुत सारे लोग जब कहा जाता है दुआ के लिए, कलाम के लिए दुआ करें, वो कलाम के मुताबिक दुआ नहीं करते, है ना। आखिरी बात
میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کی دعا کا مقصد ہونا چاہیے کہ جب میں کہتا ہوں کلام کے لیے دعا کریں تو لوگ ساری دنیا میں چلے جاتے ہیں. آپ کا مقصد ہے کہ آپ کو کلام کے لیے کہا گیا تو آپ ٹو دا پوائنٹ دعا کریں. خداوند ہم آج سننے والوں کے لیے برکت چاہتے ہیں. خداوند جتنے چرچ میں آئے ہیں آج کا کلام ہم سبوں کے لیے ہو, آج کا کلام میری زندگی کے لیے ہو. آج خداوند جب تیرا خادم کلام کو بیان کرے, آج تیرے خادم کے وسیلہ سے میں تیرے کلام کی باتوں کو سنوں, اور تیرا خادم جب کلام بیان کرے روح القدس اس کو کیا کرے, گائیڈ کر. یہ اتنی سی دعا ہے نا. اور بڑے لوگ دعا کرتے پتہ نہیں کہاں کہاں ملکوں میں پہنچ جاتے, جب ملکوں میں پہنچنے کی بات ہو تب پہنچتے نہیں ہیں, ہے نا. ایک پادری تھا وہ دعا کرتا آدمی پچھلے دنوں دسویں کرامت کے وہ دو چک گئے انہیں دمائی نہیں سی مارتی سام سجے دعا کی مرضی. یعنی کون سا چیز ہے کہ جب ایسا ہو تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پادری نے سدو دعا کرے تو موت آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. زندگی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. خدا کے پاس. اس لیے جو خدا کے پاس ہے کوئی پادری اس کو لا نہیں سکتا, ہے نا. لیکن جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پادری ایسے دعا کر رہا تھا, انہوں نے بلایا کہ ایک بزرگا تھی وہ اس سچویشن میں تھی, آخری سانس چل رہی تھی. پادری صاحب نے آئے تھے دعا کرنا شروع کرتی, دعا کر دیا خدا نے کہتا پاکستانیاں فوجاں نہیں برکت دے, انڈیا دیا فوجاں نے برکت دے. اب دعا کہاں کرنے آئے؟ مریض کے لیے. اس کا مقصد یہ تھا کہ مریض کے لیے یہ دعا کرے خداوند اگر تیری مرضی ہے اس کو اپنے پاس بلا لے, تیری مرضی ہے تو اس کا دکھ تیرے پاس ہے, اس کی زندگی تیرے پاس ہے, خداوند تو کر سکتا ہے. یہ دو چار لفظوں کی دعا, زیادہ لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ انڈیا کوئی پہنچ گیا, انڈیا میں پہنچا ہوا پیچھے مائی مر گئی, کھا کھول کے بڑے چاونا گلاس سے آم مائی کے وہاں کہنے مائی سے ماری کہنے کدو ماری کہنے کہ تیری انڈیا دعا. یہ سیم آج بہت سارے مسیحیوں کی دعا ایسی ہوتی ہے بے مقصد بے محنت, ہے نا. جب انڈیا کی باری آتی ہے تب کرتے رہے, جب باہر کی اور ملکوں کی باری آتی ہے تب کرتے نہیں ہیں. لیکن جب آپ کو چرچ میں پرپس دیا جائے, جس پرپس کے لیے مقصد دیا جائے, پوائنٹ دیا جائے, آپ کا مقصد ہے اسی پوائنٹ میں رہ کر خدا کے ذو دعا کریں. اگر آپ کلام سناتے ہیں تو میں نے یہاں پر ہمیشہ سامنے پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں اور ٹاپک لکھا ہے. آپ کا رائٹ ہے آپ اسی میں رہ کر خدا کے کلام کی منادی کریں. اس لیے ہم برکت پا سکتے ہیں. خدا کے کلام میں دنیا کی ساری برکتیں ہیں اور یہ ہمیں تربیت کرنے والی کتاب ہے. ہم اگر اس سے تربیت لیں گے تو زندگی میں برکتیں پائیں گے. تو اس لیے یہ دعا کرے خداوند ہماری زندگی کے جتنے دروازے یہ تو جانتا ہے. اس کا دروازہ ایک تھا اور وہ ایک دروازہ یہ تھا کہ یسوع مسیح کی پیشین گوئی راہ حق پر زندگی صرف نجات پانے کے لیے ایک دروازہ ہے, وہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے جس کے وسیلہ سے آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. میں چاہوں گا آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں.